छोटा मोटा आज बेहद ही खुशी के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे विद्यालय में यहाँ क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट लीड कॉन्फ्रेंस और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। तो आप जहां तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है कि आप आइए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर अब तक हमारी आवाज जा रही है कि आप आइए और बस्ती दर्ज कराइए। देवी सुमंती देवी Then it goes to esophagus, then it goes to like stomach, and it goes to small intestine, then it all large intestine in the end of the rectum. If do not take waste, it goes out from anus. Help him. Very चलो ठीक
it will take time. Yes. Very good. There are many stages of digestion. What breaks down the food inside these? There are bacteria, viruses, fungi. They are the gut microbes. They are the ones who are digesting and breaking down the food. So food, if it is nature's food, तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका break down बड़ा मुश्किल है, because that is not nature. Very good. चलो तो सोलर से चार्ज होते हैं। Okay, okay, okay. Solar excited. Very good. क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इससे? तो इसलिए मैं फिर बोलना चाह रही कि हम अगर पेट्रोल वाला करते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, और हम अगर इससे करेंगे तो इससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा, और अगर हम चलाएंगे तो ये चार्ज होते रहेगा और हमें इसको चार्ज करने का ज़रूरत नहीं होगा। मतलब इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, क्लीन फ्यूल है, इफेक्टिव फ्यूल है, अबंडेंट फ्यूल। बाकी फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। और दूसरा एनर्जी की कमी है, उसे फुलफिल कर सकते हैं। ये ज़्यादा साउंड भी नहीं करेगा, ये साइलेंटली चलेगा। हाँ, बहुत अच्छा। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट भी कम करना है, और जब ज़रूरत नहीं है तब यूज़ नहीं कर देना, बंद कर Have you seen Sora books anywhere? Huh? Oh, it's okay. You have it. Very good. This is my project, and my project name is Earthquake Alarm. Earthquake alarm. Yes, sir. Very good. As you all know that earthquake is a natural disaster to which we can't stop, but we can reduce the destruction caused by it if we get the information as fast as we can. During making this project, components such as bolt, copper wire, safety pin, cardboard, buzzer, switch, and battery. As we all know that scientists invented Richter scale, seismograph, which will work after the earthquake, but my project will work during the earthquake. It will give ultimate to the people to move. So let's check it. Now this cardboard is working as a earth. When there will be no earthquake, it will not beep. But when the earth will shake, it will give us ultimate. That is very nice. It's a beautiful model. It is still, चलो अच्छा है, very good. But there is still no system that can Prediction predict is very difficult. The earthquake is a random phenomenon. You know that this area is prone. So we have divided the whole country into 5 earthquake zones based on their vulnerability. There are movements below the earth. They are causing the earthquake. Earthquake happen due to other regions also, below sea, landslides. And if earthquake comes below a sea or ocean, we call it as it's very difficult, and the damage is caused only because the structures we have built, they are not. Under table. Yes, we should protect our head, Yes. because if head is safe, other probably the life can be safe. And the corners of the building are the most stronger part. So we should move to the corners also if there are no possibility of protecting the head or to the gate side. तो वार्निंग के साथ ये भी बताइए ना कि if there is a warning, what everyone should do. They should move to a safe. Yes. Thank you. Very good. Welcome, sir, to the world of science. Today we are here with our 2 models. One is drip irrigation and one is rainwater alarm. So we will explain the uses and the importance of drip irrigation and rainwater alarm thoroughly. So let's first discuss about drip irrigation. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन के लगातार बढ़ने के कारण हम लोगों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने घर के छतों में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस पौधों को सही समय पर पानी नहीं देते हैं तो वो पौधे मर जाते हैं।
तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उस पर पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे वी हैव यूज्ड टैंकी, पाइप, मोटर्स एंड पेपर कप्स। सो व्हेन वी विल स्विच ऑन, the water will go on the into the tanki, and from here the water will come drop by drop directly to the root zone of plants. This will prevent soil erosion and the areas which faces water scarcity, and from this plants will be not infected by the diseases. Like when the water comes in the contact of plants and all, it causes diseases. So because as the water will directly go into the root zone, so it will not cause any diseases. And this is rain water alarm. Like कि जब भी बादल लगती है तो मम्मी कहती है कि बेटा कपड़ा उठा लेना. So हम लोग या फिर कुछ चीज़ में इतने बिजी होते हैं कि भूल जाते हैं कपड़ा उठाने, और फिर जब बारिश होती है कपड़ा भीग जाती है, फिर हम लोग को मम्मी से डांट मिलती है, और फिर उसी की वजह से उसी चीज़ को सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये बनाए हैं ताकि हम लोग अलर्ट हो जाए कि बारिश हो रही है. वी विल शो यू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. From the large amount of bubbles are coming, it is hydrogen, and from where the less amount of bubbles are coming, it's oxygen. Said we have made this project that if you want to give suggestion like how can we improve it further, like more better. ये तो ड्रिप इरीगेशन सही था. यूजुअली कंट्री में हम यूज करते हैं फ्लड इरीगेशन, इरीगेट करने के लिए यू जस्ट फ्लड द वाटर टू. तो उसमें वाटर का वेस्टेज ज़्यादा होता है. वाटर ज़्यादा होने से प्लांट इन्फेक्टेड नहीं होते, बट वेस्टेज ऑफ वाटर इज देयर. सेकेंड थिंग, बिकॉज यू आर मोस्टली ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम beneath, so water level keeps on dropping because there are evaporation losses and use water. दूसरा क्या, जब आप प्लांट्स की जगह बहुत फ्लड इरीगेशन करते हैं तो प्लांट्स के अलावा हमेशा सॉइल में अदर वीड्स एंड अदर चीज़ें उनको भी वाटर मिलता है तो वो भी ग्रो होते हैं इसके साथ. तीसरी चीज़ क्या करने लगे हम, जितना भी न्यूट्रिएंट्स देना होता है वो भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं. लिक्विड यूरिया आजकल बहुत है, सो दैट आल्सो न्यूट्रिएंट आल्सो गो टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. तो यूजुअली आप जो वीड्स होते हैं, जिन अनवांटेड वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, आप उनको फीड नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज कम खर्च कर रहे हैं, और आप वीड नहीं आएंगे तो आपकी मेहनत भी कम होगी, कंपटीशन भी कम होगा प्लांट्स को, प्लांट्स हेल्दी होंगे, बड़े होंगे, तो कम रिसोर्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड होगा. तो आप इनमें नॉट ओनली ऑन द रूट्स एंड अदर प्लेसेस बट it's in it's horticulture and many other things, it is commonly used. बाकी बारिश के सीज़न में तो यार पता ही रहता है, मौसम पहले बादल बता देते हैं, तो इसको ना पानी की आजकल टंकी चलाते हैं काफ़ी लोग, वो भूल जाते हैं. उसमें ज़्यादा बेहतर काम आएगा कि देयर इज अ वार्निंग एंड इट शुड शो वार्निंग, लाइक जैसे आजकल होता है टंकी भरने से पहले 80% का एक वार्निंग है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. या फिर स्कूल में कहीं टैप खुला छोड़ दिया, देयर शुड बी सम वार्निंग कि वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होगा. बारिश में तो हाँ ठीक है, बट इट्स वंडरफुल. आप लोगों ने साइंस थोड़ी सीखी इसकी और काम करने की कोशिश की, इट्स वेरी गुड. Our project name is hydraulic pressure receiving. It is made by liquid pressure. When we are learning liquid pressure in science chapter, the idea of JCB come in our mind. इसलिए बनाई कि बड़ा सामान को इसी से उठा सकता है. This is the daytime or this is the night time? Yeah, it opens in the daytime and it closes in the Okay. and nucleus control
Okay. And chloroplast helps tomato to remain green. And this is the project. याद करने में हेल्प करता है स्टेट कैपिटल। ओके, इससे आप कोई स्टेट बोल झारखंड ही बताइए। झारखंड की कैपिटल जैसे इसमें हम सर्च करेंगे कैपिटल रांची है तो इसमें ये आवाज़ करने लगेगा और यहाँ पर लाइटिंग भी और बच्चे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसको हम और भी चीज़ लर्न करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करके टोमेटो देखा है आपने लोगों ने? ड्रॉ तो किया है, प्लांट्स को देखा है, लीव्स को, माइक्रोस्कोप है इसको? यस वेरी गुड। सिक्योरिटी अलार्म। अक्सर हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग घर से कहीं अगर बाहर जाते हैं तो हम लोग को ये चीज़ का डर रहता है कि घर में कोई चोर ना आ जाए और कहीं से हम लोग का सामान कहीं चोरी ना कर दे। जिसके कारण हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। इस प्रोजेक्ट बेस्ड है जब मतलब ये एक लाइट लेजर लाइट है, ये रिफ्लेक्ट के कारण तो घर के अंदर है कहीं अगर हम लोग को लग रहा है कि मतलब चोरी हो सकता है तो इधर से अगर कोई भी एनिमल या फिर कोई भी आदमी अगर जैसे यहाँ पे एंटर मतलब अननोन पर्सन अगर जब भी एंटर करेगा ना तो यहाँ से ये सब धूप है जिसके कारण ये मतलब ये काम नहीं कर रहा है, अंधेरा जरूर काम करता है। ये LDR जो है ये सर्किट मतलब सर्किट को क्लोज कर मतलब बंद कर देता है, जिसके कारण ये बजा मतलब साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये किसी भी तरह से मतलब इधर से भी जाए फिर भी जब बजाय स्टार्ट कर देगा बजाना, इधर से भी जाए इधर से भी जाए तो इधर से भी जाए तो मतलब ये बजाय स्टार्ट कर देगा बजाना। बेसिस में यूज़ किया, आप चाहे तो मतलब फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे अक्सर क्या होता है फील्ड में हम जब भी यूज़ करते हैं तो मतलब बहुत सारे एनिमल जैसे होते हैं वो हम लोग खेत के अंदर जाते हैं और जितना भी फसल होता है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर खा लेते हैं। लेकिन अगर ये हम लोग यूज़ करें तो उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, जिससे भी अगर एनिमल जैसे एंटर करेंगे तो ये बजट जो होगा साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। आज हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। सेंस क्या करता है उसका? शैडो? नो सर, ये इट्स LDR फ्रॉम इस लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। जब भी अगर इसमें लाइट पड़ता है तो ये इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंस्टेंटली कर देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई कर देता है। और जब भी जैसे यहाँ से लाइट जैसे हटता है जैसे अंधेरा हुआ तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, जिसके कारण ये रात में काम करेगा? यस ऑटोमेटिक करेगा सर। दिन में भी काम करेगा, रात में भी करेगा? सर अगर दिन में अगर रोशनी आ रही तो नहीं करेगा, लेकिन अगर दिन में अगर रोशनी नहीं आ रही तो जरूर काम। जैसे अभी रोशनी आ रही काम नहीं करा, लेकिन जैसे LDR को ढके रोशनी कम हुआ काम करना शुरू कर दिया। हाथ हटाए यहाँ पे लाइट जैसे पड़े तो ये बन जाता है। सजेशन चल रहा है। With a student of class 9. Myself Aman Tudu. And myself Rahul Kumar. We have met automatic state lab. Automatically on. Just we have keep finger here. It is on. If you side it, then it is off. ऐसे पोल होते हैं जो कि 10 में से 2 पोल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि उसमें लाइट फ्लो होते रहेगा, ऑन होगा, उसको बंद करने वाला कोई नहीं। उसी को हम लोग देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि जब इस पर अगर कोई लाइट पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और जब ये रात होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दिन डे है इसलिए ऑफ है, जैसे आप यहाँ पे LDR पे कवर कर रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है। उसी को हम लोग देखते हुए ये प्रोजेक्ट। इसका एनर्जी बैटरी नॉर्मल है, बैटरी से दे रहे हैं। So in the real world, how are you going to replicate it? In the real through electricity or the solar panel. मतलब एनर्जी का कोई भी सोर्स हो वो ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ हो सकता है बेस्ड ऑन द यूजर का सेंसर कनेक्शन ऑन एंड ऑफ कर देगा। वेरी गुड। आजकल सोलर लाइट भी ऐसी आती है, रियर लाइट्स ऐसी है। Welcome. Our project name is Electric Bell. The things that are used to make this project are DC motor, switch, metallic bell, adapter, cardboard, rotating arrangement. The main purpose of the electric bell is for security alarm. Okay. Like when a thief enters in your house, and this electric bell will if it will get electricity, then it will start rotating, then it will hit into the metallic bell and it will produce a sound. Through this, the members of the house will get alert and he or she can wake up. And then you can try also that
when I will switch on the, and it will produce a sound. Through this house, or we can protect our house from thieves. Okay. पता होना चाहिए ना thief कैसे आया? Like वो तो पता ही नहीं चलेगा. when you will, okay. you will put in your house, and you can put a rope here. Okay. When the thief will open the door, the rope will automatically switch on. Press the switch, and it will start rotating and hit the metallic bell. Very good. Sir, any feedback? Very wonderful. आप क्या करके दिखा रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं यहाँ थर्मोकोल है। जब मैं इस ट्रैफिक ऑयल पे डालूंगा तो देखिए क्या होगा। जब ये रात कौन सा लिक्विड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, अभी धूप पड़ रहा है ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सारा लाइट फ्लो करने लगे। क्या डिसअपीयर हो गया? ऐसे आपने बहुत से 10-15 पोल ऐसे मिल जाएंगे कि उसमें जो लाइट है क्यों हुआ? उसमें जो पोल है उसमें लाइट्स ऑन ही एसिड ने डिसॉल्व कर दिया प्लास्टिक। उसी को हम देखते हुए सूखने कपड़ों पे मत गिराना। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग आंटी। सर इसमें क्या दिखा रहे हैं? आपको ये बैलून बिना छुए फोड़ना है। ओके। आपको ये मटेरियल से किसी भी चीज़ को उठाइए और इसको फोड़ना है। जैसे अगर हम इससे फोड़ते हैं तो आप ये टार्पिन ऑयल है, इससे अगर हम इसमें छेड़ते हैं तो फट जाता है। The main purpose of the electric bell is for security alarm. When a thief enters your house, the motor will start rotating. Alcohol क्या करता है? कोरोसिव चीज़ों को गलाता When it will hit into the है, metallic जैसा कि उसे bell, गलाया it will प्लास्टिक। produce a sound. ये थर्मोकोल है क्या? Don't worry, you can test it also. क्या मटेरियल है? When I will switch on the, it will start क्या है? and it will पेपर है, produce a sound. प्लास्टिक है क्या? Through this, क्या ये प्लास्टिक है? you can, the members of the house will get up and get alert that someone has entered into the इसमें house. हवा वर्दी की बनाते हैं। This project is mainly for security alarm. You can protect your house things Very good. with the help of this project. लावा लैम्प। यस सर। लावा मॉर्निंग नहीं? सर। मॉर्निंग। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे सोडा और तेल डाले हैं। इस पे विनेगर लेंगे और फूड कलर लेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। ये इससे पिघल गया है क्योंकि ये एसिड है, एसिड प्लास्टिक है। इसको हम इसको डालेंगे ना, जब ये जाएगा तो ये मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ एसिड है, एसिड प्लास्टिक को पिघला। आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। क्या हो रहा है? ये अंदर से बबल आकर और ऊपर में आता है, ये रोटेट करते जाता है। They have made a kind of conversion current. Very good. Chemical reaction हो रही है। Cassette की also. काफी फास्ट रिएक्शन है। यस क्या बन रहा है इसमें? ये सर किसके बबल हैं? ये फूड कलर और कोई बात नहीं। वेरी गुड। क्या बेकिंग सोडा डाला है उसमें? क्या क्या था? बेकिंग सोडा, फॉर्चून ऑयल, फूड कलर एंड विनेगर। वेरी गुड। Good afternoon to our respected chief guest, Mr. To all the esteemed guests, Chichenger's chief guest, our director sir, principal sir, dedicated teachers, parents and my dear students. On behalf of the school administration and faculty, it is my great honor and privilege to
welcome you all on the annual day celebration of Jesus and Mary Convent English School. Today we have organized SLC, that is student-led conference and science exhibition, plus a Christmas program for you all. Student-led conference. The main attraction of today's program, today's event is student-led conference, where आप पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ाकर दिखाएंगे. So basically we are focusing on SLC and science exhibition. I am honored to welcome all our esteemed guests to the SLC and science exhibition, which showcases our children's creativity, their ability, their groundbreaking work of science and technology. As educators, we believe that science and technology are essential in shaping the future and challenges of our time. This exhibition provides an opportunity for our students to showcase their talent, to show their creativity, to position their science. So before this, I would like to light the lamp on the stage. Mr. Mohan Prakash, Mr. Avinash Kumar and Mrs. Kalpana Devi to come up on the stage. To do the presence of lighting the lamp. So we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. Appreciate the presence, marking the auspicious beginning of our proceedings today. Witnessing the knowledge and wisdom. It stands as a testament over a light over darkness. A heartfelt thanks to our esteemed guests, Mr. Mohan Prakash, Mr. Avinash Kumar and Mrs. Kalpana Devi for leading the auspicious, who is an IFS officer of 2016 batch from Jharkhand. Currently he is working as a divisional forest officer in Jharkhand state. Like, he visited all the countries, all the regions of the countries, whether it's east, west, south central, northeast hills and northern plains, to forest and wildlife. So he's not only also a good sportsman as well as a good secretary sportsman, plus he's a passionate forest officer who is working for creating awareness about science and ecology. So I will request our chief guest, Mr. Mohan Prakash, to come on the stage and keep up his valuable words for our students, plus our parents who are present here. So please give a round of applause for our chief guest. Thank you. आज के प्रोग्राम में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर अविनाश कुमार, मैडम एक्स चेयरमैन कल्पना जी, आए हुए बच्चों के अभिभावक, प्यारे बच्चों, स्कूल के सभी फैकल्टीज एंड पीपल फ्रॉम मीडिया एंड अदर्स, सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग एंड ऑन द क्रिसमस ईव, मैरी क्रिसमस. This is a beautiful, it is always beautiful to be back in the school, and schools are the place where we build the foundation of the society. अब कोई भी सोसाइटी उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है.
I was reading about because there is a science exhibition. I was reading about a scientist whose name was Isidore Rabi. He got a Nobel Prize in physics, like our students have done so many experiments on physics. So he was asked, do you wanted to be the scientist since your childhood? And he won the Nobel Prize in physics, and Nobel Prize in physics is said to be the biggest prize for a scientist in physics in the world. तो किसी को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? Who was your inspiration behind becoming the scientist? Do you wanted to become a scientist since your childhood? तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, तो उन्होंने बोला कि माई मदर मेड मी अ साइंटिस्ट। तो सब लोगों ने बोला कि कैसे? तो बोले माई मदर वॉज नॉट दैट एजुकेटेड, सो वेन एवर आई यूज टू गो टू स्कूल एज ए चाइल्ड, शी यूज टू आस्क मी कि डिड यू आस्क एनी क्वेश्चंस इन द क्लास? बोले कि आई वॉज सिटिंग इन द बैक एंड वॉज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। माई मदर विल ऑलवेज आस्क मी कि बेटा आपने क्लास में आज कोई सवाल पूछा? बोले पहले सवाल नहीं पूछते थे, फिर पीछे से बीच में आए, आगे आए, फिर हिम्मत करके सवाल पूछना शुरू किया। Then she, when once I told her कि मैंने आज सवाल पूछा, तो then she asked कि बेटा was it a good questions? Was it a good question? क्या ये अच्छा सवाल था? तो बोले कि धीरे धीरे I started asking good questions. तो वो जो मेरी हैबिट थी, जिसने मुझे एक अच्छे सवाल पूछने की हैबिट थी, उसने मुझे साइंटिस्ट बनाया। तो मैं सबको यही कहूँगा कि जैसे कि साइंस क्या है, इट्स अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। एक क्यूरियस माइंड का डेवलपमेंट ही बेसिकली स्कूल में होता है। तो इफ वी कैन डेवलप क्यूरियस माइंड्स, तो हमारे बच्चे इसी चीज़ से साइंटिस्ट बन जाएंगे। दे विल फाइंड आंसर्स टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन ये होता है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, वो जो ये होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि ये चीज़ें ग्रीन ही क्यों हैं, कि ये चीज़ें ऐसी ही क्यों, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। साइंस उन्हीं चीज़ों की तरफ प्रेरणा देता है, इसलिए हम समाज में चाहते हैं कि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साइंस। तो साइंस एक विज्ञान नहीं है, मात्र अपने जीवन को बेहतर समझने का और अपने को ऊंचाइयों पर ले जाने का एक तरीका है। एक टीचर की एक छोटी सी कहानी है कि आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इजराइल में इतना कुछ हुआ, जितने भी यहूदीज थे उनके साथ, तो उनको टारगेट करके मारा गया। तो उसमें एक व्यक्ति ने जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से सरवाइव करके आता है, उसने सारे स्कूल के टीचर्स को एक चिट्ठी लिखी कि बोला कि मुझे एजुकेशन पे डाउट है। एजुकेशन हो सकता है अच्छे इंजीनियर बना दे, अच्छे डॉक्टर्स बना दे, टैलेंटेड लोग बना दे, लेकिन मैंने देखा है कि डॉक्टरों ने क्या किया, इतने सारे लोगों को गैसों से मार रहे हैं, इंजीनियर्स मार रहे हैं। तो केवल एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है। बोले विदाउट वैल्यूज एजुकेशन का कोई महत्व नहीं। एक व्यक्ति को गन देने जैसा है। अगर उसे ट्रेन किया गया यूनिफॉर्म में तो आप उससे सेफ्टी फील करते हैं, और अगर उसके पास नहीं है कुछ भी तो आप उससे डरते हैं। तो एजुकेशन एक वेपन है। तो जो बिना वैल्यूज़ के अगर किसी के हाथ में चला जाता है तो वो सोसाइटी के लिए डेंजरस भी हो जाता है। हमको साइंस भी सिखानी है, और वैल्यूज़ डेवलप करने का बेस्ट टाइम विद्यालय होता है, स्कूल होता है। तो स्कूल वो समय है जहाँ पे वैल्यूज़ डेवलप होनी चाहिए। जैसे कोई पेड़ होता है, उसकी रूट्स वो वैल्यूज़ है। जितनी गहरी रूट्स होंगी, जितनी मजबूत रूट्स होंगी, वो पेड़ किसी भी आंधी तूफान में टिक सकता है। उसी तरीके से जो वैल्यूज़ में ग्राउंडेड व्यक्ति होगा, उसको समाज में फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बचपन का ही वही टाइम होता है जब हम बच्चों के अंदर रूट्स पैदा करते हैं वैल्यूज़ की। तो स्कूल एजुकेशन वो समय होता है जहाँ पे हम वैल्यूज़, तो मेरा ये कहना है कि वैल्यूज़ और बच्चों में क्वेश्चन पूछने की अधिक से अधिक उत्सुकता बनाएं। बच्चों को प्रेरित करें कि बच्चों सवाल पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस में इंगेज हो। ये पास फेल होने का कोई नहीं है। कई बार बचपन में लगता है कि हम टॉप कर दिए, कि हम पीछे रह गए। पीछे कोई नहीं रहता। सारे बच्चों का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय में फिट रहना चाहिए बच्चों को। तो आपके बच्चे में अगर उत्सुकता है, अगर हेल्दी है और वैल्यूज़ आपने दे दी हैं, तो दे विल बिकम वंडरफुल इंडिविजुअल। सोसाइटी को हमेशा उन पर नाज होगा। वो बड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, अगर आपने शुरुआत में उनकी सही सिंचाई की है। तो सिंचाई करना, ध्यान देना बच्चों का यही होता है।
तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे मौके पे आप लोगों के बीच में हूँ। और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, किसी ने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया। सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण को बचाएं। तो बच्चे छोटे छोटे संदेश दे रहे हैं, तो बड़ों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि हम कैसा समाज बनाते जा रहे हैं। क्या हमको नहीं सोचना चाहिए जब हम किसी प्लास्टिक को यूज करते हैं या जलाते हैं, तो कम से कम मेरा यहाँ पे आए हुए अभिभावकों से रिक्वेस्ट होगा कि अपने घर में अपने बच्चों को एटलीस्ट प्लास्टिक से दूर रखें। आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो गायब नहीं हो जाती है, वो जो केमिकल्स अभी तक सॉलिड फॉर्म में थे वो हवा में आ जाते हैं, वो कैंसर कॉजिंग बन जाते हैं। शहरों में हम पहले घरों में उतना वेस्ट नहीं होता था, हम शहरों में आए तो अपने वेस्ट को मैनेज करना ही भूल गए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम स्वयं से शुरुआत करेंगे, अपने घर को उस तरीके से रखेंगे जैसा हम समाज को चाहते हैं, आपके बच्चे इतने अच्छे नागरिक बनेंगे, आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जो शुरुआत होती है वो हमेशा एक छोटे से सीड से ही होती है। तो कुछ चीज़ों के लिए प्रेरणा आपको खुद बनना पड़ेगा। बच्चे एक्चुअली हमको कॉपी करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे वो बन जाएं, लेकिन हम अपने व्यवहार में उन चीज़ों को कभी नहीं लाते। तो थोड़ा सा हमको बच्चों के इंस्पिरेशन, बच्चों के रोल मॉडल्स हमेशा पेरेंट्स और अपना परिवार होना चाहिए। अगर आप वो वैल्यूज़ अपहोल्ड करते हैं, आपके बच्चों में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो एक डिसिप्लिन सिखा दीजिए, ऑनेस्टी सिखा दीजिए, ये कभी रुकेंगे नहीं। विद्यालय का भी वही काम है, विद्यालय कर भी रहा होगा। और बड़ा खुशी हुआ कि ऐसे प्रोग्राम में। और प्लास्टिक के बारे में मैं जैसे बता रहा था, तो मैंने सोचा कि मौका है, आप लोगों से मिले हैं तो पर्यावरण की भी बात कर लें। जैसे कि ये बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन शायद कम ही बच्चे जानते होंगे, लेकिन दादी वगैरह सब जानते थे ये कौन सी चिड़िया है। ये लोग यही सब प्लांटेशन करते हैं, यही सब बहुत सारे कार्य करते हैं। इन्होंने बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, बीज हो गए, ये पॉलिनेशन करते हैं। इनकी वजह से खेती में जो भी बीज आता है, फिर पेड़ों में फल आते हैं, इनकी वजह से आते हैं। अब ये धीरे धीरे अगर कम होने लग जाए किसी भी कारण से, या हम सिटीज़ का फ्यूचर देखें कि इस तरीके से गंदगी फैलाते जा रहे हैं, पानी वेस्ट करते जा रहे हैं, बिजली वेस्ट करते जा रहे हैं, अपना वेस्ट कहाँ डंप कर रहे हैं, आँख बंद करके पीछे फेंक दे रहे हैं, तो 100 साल 50 साल बाद कैसे शहर होंगे, वो हमारे बच्चों के बच्चे कैसी जगहों में रहेंगे। तो अगर उसको सुंदर बनाना है तो हमको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी होगी। गांव में क्योंकि हम सदियों से रहते आ रहे थे, ये चीज़ों को हम जानते थे, शहर में आके कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से भी भागने लगे। तो स्कूल की शिक्षा स्कूल अपने बच्चों को देता ही है। मैं ये कहूँगा हम घर से भी एक शिक्षा दें। बच्चे अगर 8 घंटे या 6 घंटे स्कूल में रहते हैं तो बचे हुए 16 घंटे और 14 घंटे आपके साथ रहते हैं, 15-16 घंटे। तो उस 16 घंटे के अंदर भी बच्चे क्या करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अगर हम सभी लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम एक ऐसे सुंदर समाज का विकास कर पाएंगे जहां आपके बच्चे खुश ही नहीं, नई ऊंचाइयों को सीखेंगे। हमारे समाज के बच्चों को भी हक है कि केवल जॉब के लिए न सोचें कि हम सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, हम विश्व में नाम बड़ा करेंगे। हम क्यों छोटा सोचें? हम बच्चों को सिखाएं कि बेटा तुमको ऐसी कंपनियां में आनी है जहाँ दुनिया से लोग आपके पीछे हैं। आज की सोसाइटी आपने देखा होगा बहुत पहले चेंज हो गई है। किसी पे पहले बहुत ज़मीन होती थी, राजा होता था, बहुत नाम होता था। फिर आपने देखा किसी के पास इंडस्ट्री थी तो नाम था। फिर आपने देखा कोई बहुत बड़ा ऑफिसर्स था तो नाम था। अब उसके बाद नॉलेज बेस्ड सोसाइटी आ गई है, तो आज जिस पे नॉलेज है उसका नाम है। और आज आपने देखा होगा कि कोविड का समय आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन जो नॉलेज बेस्ड वर्क कर रहे थे उनका काम और बढ़ गया। अब वो ऑनलाइन और विदेशों तक बातें कर रहे थे, काम चला रहे थे। तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। आने वाला समय में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए विद्यालयों का और शिक्षकों का और शिक्षा का ही भविष्य है। मैं आप सभी को एक अच्छे मतलब अगर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते तो इस दिशा में जितना कर सकें करें। और इन सब के बीच इन बच्चों को हमेशा रहना तो इसी पर्यावरण में होगा। तो इस पर्यावरण की बच्चे छोटे हैं, वो अभी से चिंता कर रहे हैं, तो लगता है बड़ों की जिम्मेदारी शायद ज़्यादा है। जब भी मौका मिले, जिस रूप में भी मिले, करें। शुरुआत स्वयं से करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं सभी को क्रिसमस की बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। Thank you. Present over here will create awareness about environment and so before we immerse ourselves into the glory of today's festivities, so we welcome our welcome dance from a nursery class, from the kids of nursery.
So I would like our kids of nursery to come on the stage for a welcome dance performance. Applause for our kids of nursery, everyone. What an exciting performance. I would like to wish on the behalf of our school, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Moving on to our next segment, it's my privilege to call upon the stage Mr. Avinash Kumar, who is the District Welfare Officer of Godda. Okay, I would like to call him on the stage and give up his valuable words. Thank you. First of all, I would like to extend and express my gratitude and thankfulness to organizers here to invite me to this auspicious occasion. मैं DFO सर का, कल्पना मैम का, यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हुए हैं, उनके अभिभावक आए हुए हैं, स्कूल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग आते के साथ जैसा देखे कि बच्चों ने काफ़ी अच्छे एग्जिबिट डिस्प्ले कर रखी हैं, तो अभी से बच्चों में जो एक क्यूरियोसिटी डेवलप किया गया है स्कूल की तरफ से, और बच्चे जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड टू सी इन गोड्डा कि people are paying attention to the education, good education of their children. So it is good thing to see, and I expect कि, और मैं स्कूल को भी, स्कूल के ऑर्गेनाइजर्स को भी शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और आगे भी अच्छा नाम करेंगे। आज क्रिसमस के ईव पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, तो I extend my heartiest greetings to all the students and children here and express my Merry Christmas to all. जैसा सर ने बताया, DFO सर ने बताया कि बच्चे
एनवायरनमेंट को लेकर के अभी से काफ़ी सेंसिटिव हैं. दे आर सेंडिंग अ गुड मैसेज फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड देयर सराउंडिंग्स, एंड दे आर ऑल्सो सेंडिंग द मैसेजेस टू देयर पेरेंट्स एज वेल, कि उन्हें भी अपने बच्चों को इसमें और प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आगे चल करके इन स्टेट्स को कायम रखेंगे. और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाएंगे या स्कूल वाले सिखाएंगे. वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन एज वेल. और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है. जैसे कि आज हम लोग साइंस एग्जीबिशन में आए हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना. we have been inculcated with so many beliefs, faiths from the very beginning, through our childhood or in our adulthood as well. But one of the most important thing is that कि आपको चीज़ों में खुद से बिलीव करना चाहिए. कोई चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो आप खुद से उन चीज़ों को एवेल्युएट कीजिए. आपके माँ बाप अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, स्कूल वाले भी अच्छी चीज़ सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी आप खुद से भी उनको इवेल्युएट कीजिए. क्योंकि अभी आपका काफ़ी टेंडर एज होता है, आपको जो चीज़ें बता दी जाती हैं आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें ही सही है, लेकिन आप एक स्टेज पर आते हैं, आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, आपका एनालिटिकल पावर डेवलप होता है, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू होती हैं. तो चीज़ों को बिलीव कीजिए, लेकिन साथ ही अपने स्तर से भी एनालाइज कीजिए उन्हें कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं. जैसे कि हमें बताया जाता है बहुत सारी चीज़ें, रिलीजियस बिलीफ है, सोसाइटल बिलीफ्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक है, हमें रिचुअल से सिखाया जाता है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके माध्यम से सिखाया जाता है. बट यू कांट बी वेरी सर्टेन अबाउट द नेचर, कि नेचर क्या है नहीं है. सभी अपने अपने, जैसा जैन में एक फिलॉसफी है, जैन दर्शन में एक हाथी था, तो चार आदमी जो चार ब्लाइंड पर्सन थे, वो हाथी को छू करके बोलते हैं हाथी पूंछ के जैसा है, हाथी सूंड के जैसा है, हाथी पाँव के जैसा है. तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सोचने का. तो चीज़ों को आप अपने नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको चीज़ें एक ही दिखती हैं. तो आपको चीज़ों को उनके होल पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है. तो मैं स्कूल से यही एक्सपेक्ट करता हूँ या एजुकेशन सिस्टम से, कि बच्चों में या गार्जियंस में वो होल पर्सपेक्टिव डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि चीज़ों को एज ए होल देखें और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के डॉगमेटिक नहीं हो जाए, आपस में लड़ना बंद कर दें. तो मेरा यही मैसेज है आज के दिन कि आप अपने में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें और चीज़ों को अपने से इवैल्यूएट करें और उसकी जो भी ओरिजिनलिटी है उसको समझें. किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसके पीछे ब्लाइंड फेथ फॉलो करके एक दूसरे से लड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है. ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग, उसे फॉलो करें. दैट्स ऑल. थैंक यू. Thank you, sir, for your valuable words and sharing your thoughts. Now we have a dance group by JKG and SKG. So I would like the students of JKG and SKG to come on the stage for the dance performance. So please give a round of applause for our students of JKG and SKG.
happiest Christmas tree. Ho, 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 hip, hip, hip. Someone came and they found me and took me home with them. Oh, I'm the happiest Christmas tree. Ho, 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 hip, hip, hip. Look how pretty they dress me. Oh, lucky, lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that tingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. Ho ho. What a mesmerizing performance. Let's give a round of applause once again for JKG and SKG students. Of JKG and SKG and nursery students for performing. So our next segment, we have prize distribution. We would like to give a token of appreciation to our students who have participated and won the competition. So first of all, I would like to call upon the stage Mrs. Kalpana Devi to come up on the stage and to give out the prize to the token of appreciation to the students who have won on the inter-school competition. Basically, they have won this competition on the basis of houses, whether it's a debate, whether it's a quiz or sports event. Students have competition on the basis of their houses. So, on the basis of the houses, we have on the solo acting, the first place goes to Nikita Bharti from Blue House, class 6. Of class 8 from Red House. Please give a round of applause for Nikita and Divya for their solo acting performance. Then on group, Yasir and Minaj from Greenhouse. I would like Yasir and Minaj to come up on the stage. And on the second position, we have Anas and his group from the Red House. हेलो वहाँ कहाँ चले गए? हाँ जा वहीं रुके हम भेज रहे हैं उसको वहीं रुके. And in the third position, we have Saad Ali and his group from Blue House. Plus, we have Manish Kumar and his group from Greenhouse. Now moving on towards our English debate competition. The winner is Blue House, that is Shad Ali and his group. So please give a round of applause for a Blue House. And on the basis of English speech competition, on the first position we have Animesh from Blue House.
And on the second, from class 8, from Blue House. And in the third position, we have Manish Kumar from class 9, from Green House. So please give a round of applause for our students. And we have from class 4 to class 6 category on the basis of English speech competition. On the first position, we have MD Anas from Red House. And on the second position, we have Arad Bhatt from Green House. And the third position, we have Rishabh Kumar from Red House. Now I would like to call upon Mr. Avinash Kumar to come up on the stage to give a prize to the other students. Class 1, 2, 3 on the basis of English speech competition. The first position goes to Mahadev Panda from Green House. And in the second position we have Ishika Kumari from Red House. And in the third position, we have Arohi Singh from Yellow House. And on the basis of spellbook competition, we have a winner in the senior level, that is MD Anas from Red House. And from the junior level, we have Arpit Kumar from Blue House. हेलो पहुंच गया Now moving on to the next award, that is the award for our parents who have contributed to our school, who have continuously contributed to our school. I would like to call upon the parents of Zufisa and Amesh, that is Dr. Farzana and Dr. Safi Alam, to come up on the stage and to take the token of appreciation on the behalf of our school. So please give a round of applause for Dr. Farzana and Dr. Safi Alam. And I would like to call the parents of Aryan and Ankush, that is Mr. Sanjeev Gupta and Mrs. Rekha Gupta, to come up on the stage and take the token of appreciation. Then moving on to our next parent, that is the parent of Jigyasa, that is Mr. Jitendra Kumar. I would like Mr. Jitendra Kumar to come on the stage and take the token of appreciation. Next we have come up on the stage and take this appreciation. So please give a round of applause for the parents who have contributed to our school. I like to take back your sheet, sir. In the academy. So moving on to our next prize distribution, we have Academic Excellence Award, which is conferred to students whose academic performance during the year demonstrates remarkable consistency. So the Performer of the Year award goes to, any guesses? Any guesses? Students, any guesses? Who is the Performer of the Year? Shad. Next. MD Anas. Anyone? So the Performer of the Year award goes to MD Anas.
Next, we have the Performer Reader of the Year. Any guesses? Anyone Performer Reader of the Year? Any guesses? Performer Reader of the Year? It's MD Shad Ali. Please give a round of applause for our students. Then we have a rolling trophy, that is the House of the Year. Which house? Yes, you are correct. It's Blue House. So I would like to call the leader of the Blue House, postman, mentor, as well as the ops captain. So the House of the Year is Blue House. Then moving on towards Kumar from class 10. Then we have Master Etiquette of the Year. So the award goes to Manish Kumar from class 9. Then we have the highest attendance award. Divya Bharti. Anyone? Highest attendance award who have attended the school regularly? So the award goes to Khushi Kumari from LKG. Khushi Kumari from LKG, whose attendance is 100%. Please give a round of applause for Khushi Kumari. Then we have Samajan Kid Award, and the award goes to Ravi Kumar. And the final award is the award for the Best Groomed Child. Best Groomed Child. Any child who is always groomed up well. It's Avni Kumari. Avni Kumari, please come on the stage. For the students who have received the award, the one who have participated in each of the competition and won the competition, as well as excelled in every academics. Thank you, sir. Group song by our teacher, that is Miss Jasanta and Miss Meena. So I would like to come up on this. I would like to call the teachers up on the stage for a group song. Morning, everyone present over here. We are going to perform a short song. I hope you all like it. Praise the Lord, oh my soul, oh
incredible performance, Mr. Santa, call Mrs. Kalpana Devi to come on the stage and keep her valuable words for our students and for our schools. धन्यवाद। आज जीसस एंड मैरी स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहन प्रकाश जिला वर्ण पदाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि अविनाश कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी, उपस्थित यहाँ पे सभी पेरेंट्स और बच्चे, सभी को सबसे पहले मैं अपनी ओर से क्रिसमस और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। विशेष आप सबों के बीच मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने सारी बातों से अवगत करा दिए हैं। मैं सिर्फ अपनी ओर से यही कहना चाहूँगी कि जो आप लोग के बीच मुख्य अतिथि ने बात को रखा, उस पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर पहल करें और आज इस स्कूल ने पूरे 5 वर्ष पूरा किए। इसके लिए यहाँ सभी टीचर्स को और स्कूल के व्यवस्थापक को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जो उपस्थित हैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ। और ख़ासकर जो विवेक जी हैं, इनका जो हर हमेशा बच्चों के प्रतीक, पेरेंट्स के प्रतीक जो इन्होंने अपनी मेहनत से आज इस स्कूल को इतना आगे बढ़ाए हैं, मैं इनको दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ कि आप इसी तरह इस स्कूल को आगे बढ़ाइए और गोड्डा का नाम रोशन कीजिए और स्कूल का नाम रोशन कीजिए। साथ ही साथ मैं उनकी दादी को प्रणाम करती हूँ, उनकी माता जी भी बैठी हैं, उनका वो भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप खुद टीचर हैं और अपने बच्चे को आज इस लाइन में जो जोड़ने का काम किए, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और उनके पिताजी को भी, जिन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। मैं इस रोड से बराबर पार करती हूँ तो इनको देखते रहती हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं। आपको इस मेहनत के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप पेरेंट्स से पुनः मैं आग्रह करती हूँ कि आप सब बच्चे को बहुत हेल्दी बनाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि टीचर्स तो यहाँ की सभी बहुत अच्छी हैं। मैं 2 वर्ष से इस स्कूल में आ रही हूँ। टीचर्स का जो मैं काम देखती हूँ, मैं बहुत प्रसन्न होती, बहुत खुश होती हूँ। सारे टीचर्स को भी मैं अपनी ओर से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ के बच्चे को आप अपने ओर से मेहनत करके आगे बढ़ाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thankful words. Now, I would like to give a token of appreciation to our chief guest. So for that, I would like to call our director, Sir Postman, to come on the stage and to give a token of appreciation to our chief guest, Mr. Mohan Prakash. For giving a valuable time to our school. Thank you, sir, very much. Next, we have guest of honor, Mr. Avinash Kumar. I would like Meena ma'am to come on the stage and give a guest of honor, to give a token of appreciation to our guest of honor, that is Mr. Avinash Kumar.
Next, I would like to call Miss Pratiksha to come on the stage. Plus, I would like Pops Ma'am to come on the stage to give this award to Srimati Sumanti Devi. Please give a round of applause for our ma'am. This Kalpana ma'am to come on the stage to take a token of appreciation. I would like Priya ma'am to come on the stage to give a token of appreciation to Kalpana ma'am. Our director sir, Mr. Atulya Bhaskar, to come on the stage and render vote of thanks to our chief guest and the guest of honor. Good afternoon everyone. मैं मोहन प्रकाश सर का, अविनाश सर का, कल्पना आंटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इस स्कूल को दिया, इस स्कूल के बच्चों को दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आपने ये समय आप हमारे लिए निकाला है, आप कहीं भी होंगे, इस पूरे भारत के किसी भी कोने में होंगे, यहाँ के बच्चे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं मोहन प्रकाश सर के बात से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। शिक्षा जितना जरूरी है आज के तारीख में, उससे ज़्यादा जरूरी है संस्कार, क्योंकि वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना हमारा शिक्षा में हम लोगों ने क्वालिटी का बात किया है, उससे ज़्यादा हम लोग संस्कार पर काम करते हैं, ताकि बच्चा कुछ भी करे, चाहे वो एक क्लर्क बने, चाहे वो एक दुकानदार बने, चाहे वो बिजनेस पर्सन बने, चाहे वो एक आईएएस बने, वो अपने सोच को ऐसा रखे कि हर कोई समाज में बराबर है। आज जब इस डिजिटल युग में है हम लोग, तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल का मिसयूज नहीं करते हैं। हम लोगों ने बहुत कंट्रोल रखा है उस चीज को, ताकि आने वाले समय में उन पे मोबाइल का बुरा प्रभाव ना पड़े। मैंने अविनाश सर के बातों को भी सुना। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो अपने छुट्टी के दिन में से अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस स्कूल के बच्चों को दिए हैं। मैंने कल्पना आंटी के बातों को भी सुना। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और खास करके यहाँ पे आए हुए जितने भी अभिभावकगण हैं, जो कि या तो मेरे बड़े भाई हैं, या तो मेरे माता पिता के समान हैं, या मेरे दादा दादी के समान हैं। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं जितने लोगों ने इस स्कूल में, इस स्कूल के बच्चों को, इस स्कूल के प्रबंधन को, इस स्कूल के शिक्षकों को अपना आशीर्वाद दिया है। इस 2023 में वैसे तो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं अपने यहाँ, लेकिन जितने भी बच्चे हैं और यहाँ पर जितने भी बैठे हुए अभिभावक हैं, मैं मानता हूँ कि 100% अभिभावक हम लोगों के कार्यशैली से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, और यही हमारा अचीवमेंट है। मैंने इस कार्यक्रम को बहुत छोटा रखा है, क्योंकि इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी क्लास में होना है, और मैं सम्मानित अतिथियों से चाहूँगा कि जब उन लोगों ने, आप लोगों ने
इतना समय दिया है तो और 5 मिनट दें। आप देखें कि हमारे स्कूल में यहाँ के शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब तक आप किसी चीज़ को समझा नहीं सकते हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर वो चीज़ पूरी तरीके से गया नहीं। तो आप एक बार देखें कि कैसे बच्चे पूरे सिलेबस को या पूरे टीचिंग मेथोडोलॉजी को आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट जो मैं आप सम्मानित अतिथियों को, अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि हम लोग लीड स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो कि एक एडटेक कंपनी है। पिछले 1 साल से हम लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही संतोषजनक रिजल्ट रहा है। आने वाले इस साल में यानी कि मार्च के बाद हम लोग एक हाइब्रिड फाउंडेशन लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कि बच्चों को क्लास 6 से ही IIT, नीट और क्लैट की फाउंडेशन क्लासेस दी जाएंगी। उस सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि बच्चे गोड्डा में बैठे हुए दिल्ली, कोटा और भी विभिन्न जगहों से IIT से पास आउट, NIT से पास आउट या PhD स्कॉलर या BHU के पढ़े हुए स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स बन करके हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे। इस पूरे सिस्टम को लाने में, या पिछले साल भी मैंने लीड के पूरे सिस्टम को जो लगाया अपने यहाँ पर, आप तमाम अभिभावकों का पूरा साथ मिला और आशा है कि आने वाले समय में भी, अगले वर्ष भी जब मैं हाइब्रिड फाउंडेशन को इस स्कूल में लगाऊंगा तो आप लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। मैं आभारी हूं उन सभी अभिभावकों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मेरे पहले रो में 2 ऐसे अभिभावक बैठे हुए हैं जो कि जिन्होंने पहले वर्ष से स्कूल के पर विश्वास जताया है और हमने भी कभी उनके विश्वास को कम नहीं होने दिया है। और मैं यहाँ पर बैठे सभी अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं इस स्कूल को चला रहा हूं तब तक मैं आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को 100% रखूंगा, उसको मैं 99 नहीं होने दूंगा। आपको जहां पर लगेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस स्कूल, आप मुझे एक बार बताएं, मैं उस चीज को ठीक करने का कोशिश करूंगा और मैं ठीक करके रहूंगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your words. Now, I would like our chief guests to visit our workstation, science exhibition workstation, and the student-led. बच्चे जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी को जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे हमने ये सुंदर का बोर्ड देखा, तो ये क्लास में बनाया हुआ बोर्ड। मैम, where do we need to go? Class 1. KG और UKG क्लास बुलाते हैं। ये लोग जो है SLC नाम से करके स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस ये लोग प्रिपेयर हमेशा अवेलेबल होता है। We have more than 6,000 teaching aids. Good morning everyone. My name is Arush Kumar. Today we the student of senior KG are going to teach you about the solar system. Solar system. There are 8 planets in our solar system. Now let us take a look in the solar system. Mercury, it is planet. It is the smallest planet. Venus, it is the second planet. It is the hottest planet. Earth, it is the third planet from the sun. Human beings, plants, animals, and birds live in this planet. Mars, it is red in color. Jupiter, it is the 5th planet. It is biggest planet. Saturn, it is 6th planet. It has 7 largest rings around it. Uranus, it is 7th planet. It is blue-green in color. Neptune, it is 8th planet. It is coldest planet. Thank you.
कुछ और जैसे हम लोगों ने CBC वर्ड्स हो गया, ये फोनेटिक्स हो गया, ये सब चीज़ पर इंग्लिश जो है सर हमारे यहाँ पर क्लास वाइज नहीं बल्कि लेवल वाइज पढ़ाया जाता है एंड वी टीच ओनली 5 सब्जेक्ट्स। तो हम लोगों ने मैंने पर्सनली जो है स्कूल को इस तरह से शुरू से चलाया। जब से स्कूल में तो मैंने ये कोशिश किया है कि बच्चों का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दैट्स वाई 4th तक हम लोग जो है सर बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल उसके अब जैसे ये हाइब्रिड फाउंडेशन है तो इसमें स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बच्चों को अभी तो ये सर हम लोगों ने 43 इंचेस का टीवी ये भी ऑपरेशनल है। You read this and you do the exercise. Do the action of eating. No, आप करना चाहिए था. Laughing, walking, okay. because there are मतलब यहाँ पे जीवित इंसान सब भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं और भी पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम and all natural phenomena occurs in this layer like cloud, thunder, birds and balloon also fly in this layer. Thank you. Star means naming word of a person, animal, place or thing. For an example, a pen. So there are two types of noun. One is common noun and second is proper noun. Common noun means a specific name used for a person, place, things or an animal. And proper noun means व्यक्तिवाचक संज्ञा. And proper noun means proper a specified name used for a person, place, things or an animal. BA square and AB square and 2AB square. We have to combine like terms with like terms. AQ plus
2a equals to 3a square b plus a square b and 2a square b is equals to 3ab square and b square plus b square b cube. Then we get final product. Why we need a algebraic expression? We need संख्या क्या है? नहीं पता। संख्या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब संख्या है। दुनिया में क्या है? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जानवर है, भाव है और भी ढेर सारा चीज। ये भाव क्या है? भाव वो भाव। चलो गुड। As a result, they went to war. The war ended after 4 years and the North won. The slavery was made illegal in the USA. Abraham Lincoln was a great person, but after 6 days later, he was shot dead. कहानी बताया, तो मैं फिर से उसी कहानी को हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो आज हम एक मुख्यदाता अब्राहम लिंकन के बारे में जानने वाले हैं। अब्राहम लिंकन बहुत ही महान राष्ट्रपति थे। वो अपने देश में गुलामी को वो अपने देश के लिए बहुत दूर तक सोचते थे। वे बहुत ही मेहनती थे, वो बहुत ही ईमानदार थे। आपको बचपन याद आया? उनका मानना था कि और क्लास का आज के डेट तो वो दीजिए तो बेहतर है। स्कूल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? स्कूल का इतना जल्दी कोई स्कूल ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ खासियत है। लोग आज 10-20 साल से स्कूल खोले हुए हैं लेकिन इतना ग्रोथ नहीं है। आपका 5 साल में इतना ग्रोथ है, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? इसका मतलब कुछ खासियत है स्कूल में। यहाँ कुछ पेरेंट्स को लगा कि नहीं यहाँ बच्चों को देना चाहिए तो दे रहा है और आपका ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वो समझ रहे हैं, हाँ, और वो कहीं भी वो उसको यूज कर सकते हैं और दूसरे को टीच कर सकते हैं। यही सबसे बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ नया इवेंट लगा सर आपको, मतलब स्कूल के लेवल पे आप ये नया इवेंट लगा कुछ? ये हल्के थोड़ा हटके था SLC वाला पार्ट जो क्लास में बच्चे कर रहे थे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हमको और बिल्कुल ये हटके है और हर स्कूल में इस तरह की पढ़ाई नई व्यवस्था है और आप जो व्यवस्था किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे सर? स्कूल के बारे में जैसे हमने एडमिशन अपने बच्चे का कराए थे तो हमको लग रहा था कि क्या जान कैसे जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से रिजल्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने एक दिन अपने बच्चे को बोला कि आप इस मोबाइल को देख रहे हैं, हाँ, मोबाइल के बारे में 5 सेंटेंस बोलकर दिखाइए तो हम इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया और बोल दिया। हमने कहा कि सही में पढ़ाई ठीक, अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो आपको इंग्लिश लेवल भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, इंग्लिश में लेवल अच्छा दिखा ना? जी। थैंक यू सो मच सर। खासकर बच्चों में एक चीज़ ये हमने देखा परफॉर्मेंस की। आज कल जहाँ तक बच्चों को हम कहते थे बेटा पढ़ो, पढ़ने बैठो, और इसके पहले भी कई स्कूल में पढ़ा है लेकिन बच्चों को प्रोफेंस हम लोग नहीं देखा। और जब से इसमें एडमिशन लिया है ना तब से बच्चे को मैं ट्यूशन बंद कर दिया और खुद वो जो है एक्सीलेंट कर रहा है। और ये जो आपका नीट वाले लीड इसका जब से पढ़ाई स्टार्ट किया आपने उस समय से हमको लगता है कि बच्चे में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। और अब तो यहाँ तक कि ट्यूशन वाले कोई पहुँच भी जाते हैं ना तो इतना सवाल जवाब खुद करती है बच्चे सब, क्योंकि टीचर को ये नहीं होता है कि हम पढ़ाएं और बहाना बना के निकल जाए। हमने देखा है 2 दिन पहले भी हमने कहा कि बेटा एक काम करते हैं टीचर को बुला देते हैं, शाम के टाइम में इंगेज रहोगे थोड़ा सा तो हो जाए कवर हो जाएगा आगे। बोला हमको कोई ज़रूरत नहीं है, जब बुलाते हैं तो ले आइए। अच्छा था करीब ऐसे
CGL का भी एग्ज़ाम उसने दे दिया है, जो स्टूडेंट आए पढ़ाने आए CGL का कैंडिडेट था। और उनसे जब सवाल जवाब किया 7 क्लास किए तो फिर बोला कि सर देखिए अभी टाइम नहीं है, हम 2 दिन के बाद फ़ोन करते हैं। ठीक। फिर दोबारा फ़ोन नहीं। अच्छा। तो इस पर्पज से हमको लग रहा है कि नहीं, बच्चे में हमको जो चाहिए वो हमको मिल रहा है। और ये जो आज का इवेंट जो हुआ सर, उसमें आपको लगा कि इसमें बच्चों को थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, मतलब खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे? और हाँ, इसके बारे में कुछ मतलब कुछ बोलना चाहेंगे सर कि ये जो इवेंट है कैसा लगा आपको? इसके बाद इसमें बहुत अच्छा इवेंट दिया है बच्चों में। और कल जहाँ तक बच्चों में वो जो हिचकिचाहट होती है, गाँव घर में बच्चों को 4 के सामने 10 के सामने नहीं बोल पाता है, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस उसमें पैदा है कि हम अपने से बच्चों बड़ों को भी हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आप क्या लगता है सर, हम लोग को नेक्स्ट टाइम ये इवेंट कराना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं साल में 2 बार होनी चाहिए। साल में 2 बार होनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग भी कोशिश करेंगे सर इसको साल में 2 बार करने का, ताकि खासकर इसमें एक्टिविटी बच्चों की बढ़ती है और गार्जियन भी उसका उत्साहित होते हैं कि आगे कुछ करना है, और गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कैसा लगा सर जब आप आज आपके बच्चे आपको पढ़ा रहे थे, तो कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ? हमको अपना बचपना याद आ गया। अच्छा। जिस समय पिताजी माँ सब जो कान पकड़ के पढ़ने बैठाते थे, तो उस समय लगता था कि नहीं कौन बाती में फंस गए। लेकिन आज वही बच्चे पिताजी को स्टूडेंट के रूप में बिठा के पढ़ाते हैं, और बहुत सारा ऐसे भी गार्जियन हैं जो भी लेवल में पढ़ाई के लेवल में जो भी है, लेकिन उनसे कुछ बच्चे आगे हैं, महसूस हो रहा है। जो हम नहीं जानते हमसे ज़्यादा बच्चे जानते हैं। अच्छा। Mesosphere, and fourth one thermosphere, and last one exosphere. So I explain you troposphere. Troposphere is the first layer of the atmosphere. There are many types of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, helium, and etc. And all natural phenomena occurs in this layer, like cloud, rainfall, thunder, and birds, and also hot air balloons also fly in this layer. अब सामने देखे के पीछे आइए।